میٹرو لائٹ ٹی وی اور پی لیک کے زیر اہتمام رنگ و روپ کی جانب سے سینئر فلم جرنلسٹ المعروف دادا طفیل اختر کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے نامور اداکاراؤں، ماڈل، ڈائریکٹر، ایکٹرز اور رائٹرز نے شرکت کی اور شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے اظہار خیال بھی کیا۔ یہ تفاوت بیچ میں نہیں آنے دی تھی، بے تکلف دوست تھے اور اکثر ایسی باتیں وہ کر جاتے تھے جو بڑی پرلطف ہوتی تھیں، اور ان کی کتابوں کے حوالے سے جو انہوں نے نور جہاں کے حوالے سے کتاب لکھی، نور جہاں فطور جہاں، وہ بہت مقبول ہوئی، اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں جو اس کتاب میں نہیں تھی وہ بھی سنایا کرتے تھے، تو بڑے کبھی کرتے تھے، لیکن وہ سناتے نہیں تھے لوگوں کو، دوستوں میں بیٹھ کر بطور شاعر اپنے آپ کو متعارف نہیں کرواتے تھے، دوستوں میں بیٹھ کر یہاں اکثر وہ باقاعدہ مجھ سے ملنے ادبی بیٹھک میں آ جایا کرتے تھے۔ پڑھنے والوں کی کتاب چھوڑتا نہیں تھا، میرے پاس ان کی آج سے 40 سال پرانی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں جو انہوں نے لالا سدھیر اور محمد علی وغیرہ کے بارے میں لکھی، وہ چھوٹے چھوٹے کتابیں ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ میری لاسٹ ٹائم ان سے ایک کتاب پرچیز کرنے گیا تو انہوں نے کتاب دے کر مجھ سے واپس لی، کہتے میں اپنے وداؤٹ اوور ریمارکس آپ کی کتاب دے نہیں سکتا۔ میں کہا یو ویلکم۔ انہوں نے اس کے اوپر لکھا تاریخ ساز شخصیت میاں نوید اختر، ان کی وہ تحریر میرے پاس محفوظ ہے اور جب تک میری زندگی ہے اور میرے بعد بھی وہ محفوظ رہے گی۔ کسی نے ان کے بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملیں گے نہیں نایاب ہیں ہم۔ خدا میں نے کہا تم سے مل کر کہ تیرے مرنے کا غم بھی ہے لیکن تیرے مرنے کا غم بھی ہے لیکن تیرے جینے کی آرزو تھی۔ کئی دہائیوں پہلے زندگی میں پہلی ملاقات جو ہوئی لوگوں سے، اپنے کلچر سے، اپنی رہبت سے، اپنی زمین سے، اپنے پاکستان سے جڑے ہوئے شخص، ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ والے، ایک ایسے لطیف لہجے کے آدمی تھے وہ کہ بڑے دھیمے لہجے میں بنی، کم بولنا لیکن بڑا سالڈ بولنا، ایک پوزے میں دریا بند کرتے ہوئے ان کی گفتگو شروع ہوتی تھی۔ وہاں بھی ان کا آنا جانا تھا، ان سے بھی ایک ایفیلیشن، اور رنگ و روپ کے روح روا یا نور صاحب کو ایسے لیجنڈز کو انہی کو ہی یاد رکھا جاتا ہے، تو اللہ بھی ان کے درجات بلند کرے۔ شب قریب فیکٹ ہے، الٹیمیٹلی ایک دن ہم سب کو بھی جانا ہے، تو جو چلے گئے وہ ہماری یادوں میں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آشا اللہ طرف سے آئی ہے اللہ میں کہا گیا کہ بابا کو خیال اختر کے بارے میں تھی جیسے اس کے حوالے سے بات کرنی ایک دستاویزی ہے، ایک میں کیا کہوں، ایک اتنا طویل سفر ہے ان کے ساتھ، اسے کہتے ہیں مختصر کر دیں۔ بہرحال بھی جتنا مختصر ہو سکے گا، اختصار سے جتنا کام دے سکیں گے ضرور دیں گے، لیکن کوشش اور ایک عدالت، یہ دونوں چونکہ دھنت میں ان دنوں کام ان کا شروع ہو گیا ہوا تھا۔ جاوید اقبال صاحب بھی ان دنوں کارٹون بناتے تھے جو دادا ملاقات تھے، اس طرح بڑھ گئی کہ ہم ابھی شو میں تھے لیکن میں آگے خصوصیت ہے، اور وہ اس وقت ماشاء اللہ دھنت میں تھے۔ ان دنوں میں تھا وہ 3 نمبر پہ ہوا کرتا تھا، 3 نمبر جاتی تھی نا تو اس پہ سفر کر کے جانا کسی صحافی کا منڈے کی طرح کاٹدار بات کرنے کا عادی بنتا ہے۔ زندگی انجے ہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور سارے درمیان رہنے والے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، اگر ان چنگے طریقے سے گزاریے تو وہ کبھی نہیں بنتا۔ اور میں سمجھنی ہے کہ طفیل اختر دادا کچھ ہو سکے تو ان کی فیملی کے اسی کریے۔ سب کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔
शख्सियत थी। बुनियादी तौर पे वो एक सहाफ़ी थे। मैंने जब मॉडल टाउन एक्सटेंशन में पहली दफ़ा मकान बनाया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई स्टूडियो में, तो बहुत खुशी का इजहार किया उन्होंने। कहने लगे मैंने बड़ी तारीफ सुनी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहने लगे दिखाएंगे नहीं, मैंने कहा इंशाल्लाह हम टाइप कर लेंगे। वो आए, ये ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनके बहुत अच्छे जज्बात थे, क्योंकि हम सब ज़ाहिर है एक ही चार दीवारी में रहने वाले लोग हैं, एक ही कारोबार से मुंसलिक हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं। अपने साथियों को ना भूलें, चाहे ज़िंदगी में आपके साथ उनका इख्तिलाफ रहा हो या ना रहा हो, इससे बड़ा खिराज अकीदत और कोई नहीं है जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते। तो ज़ाहिर है इनका भी नाम शामिल है, मेरी भी और हम सब की जो खिदमत रही है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आप सबका शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, तो अल्लाह को जन्नतुल फिरदौस की जगह दे। इस तरह से तो सही तरह में एक्सप्रेशन ऐसा लगा अगर मैंने कभी कभी सुस्ता मीठा बोला है, दामे दर्द मेरा गुस्सा कम होता है, लेकिन वो मीठे जब में वसीला इतना था कि लुटा। इससे हमने बहुत रहनुमाई भी हासिल की, जीने का सलीका सीखा, पढ़ने का लिखने का सलीका आया, बैठने का उठने का तहजीब का। वो एक अपनी ज़ात में उसी तरह रवा दवा हो सकती है, हम उसकी मुस्कुराहट उछाले को भी जारी करें, ताकि अदब व सकाफत का ये जो तर्जुमान ये ज़रूरी हो गया है। और मैं उन पर इंशाल्लाह एक किताब लिखूँगा जिसका उन्वान होगा दादा का दरबार। क्योंकि लाहौर में लोग दाता दरबार पे तो हाज़िरी होते हैं, लेकिन फिल्म के तशनलब और सहाफ़त के तशनलब लोग उनके डेरे पे आते थे। तो वो हम उनके एजाज़ में किताब लिखेंगे जिसमें उनके दोस्तों के अफ़कार शामिल होंगे, उनकी तहरीरें होंगी, दादा की अपनी तहरीरें होंगी। उसका नाम हमने ये सोचा है। वो हम उसका जिक्र भी किया करते थे तो वो मुस्कुरा कर टाल दिया करते थे। जो आप लोग देखते हैं, लोग जमा होते हैं, वो बड़े खुश नसीब लोग हैं जहाँ ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी बड़ी बात है, बड़ी खुश नसीबी है कि सब लोग तोफैल दादा साहब के में तशरीफ लाए। ये क्या है, तो आप चेयरमैन हैं? मैंने कहा यार मैं चेयरमैन जरूर हूँ, मैं तो हर जगह हाजिर होता हूँ। जो शाहनूर का जो गार्ड फौत हो गया है उसकी भी 30 साल की सर्विस थी, मैं उसके भी जनाजे में शामिल था। अगर स्टूडियो ऑनर का होता है, अगर वो हो तो मैं वहाँ भी होता हूँ। मैं हर जगह ये मीडिया देखता ही है और मुझे पता लगता है, मैं जाता हूँ। इस बात का है कि एक अच्छा सहाफ़ी, एक अच्छा इंसान, अच्छा दोस्त हमें छोड़ गए। और बोझ ये है, कुछ दिन पहले एक लफ्ज़ के मायने तलाश करते हुए मैंने दादा तुफैल अहमद को फ़ोन किया, जैसे क्या मायने हैं। डिस्कशन हुई, खैर उसके बाद मैंने पूछा क्या कर रहे हैं। कहते यार अकेला बैठा हूँ, कोई आता जाता ही नहीं है। आज इस महफिल को देख के कम से कम उनको ये तो एहसास होगा कुछ लोग आए कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुझे कोई जरीदा निकालना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो बहुत मयारी किस्म का जरीदा हो जिसमें हम बड़े अच्छे तरीके से अपने एक्टर्स, अपने टेक्नीशियंस, उन लोगों को प्रिंट करें। पहले दादा ने जो बेटों के जवान होने से पहले, बेटों के पहले पैदा होने से पहले ही वो दादा होंगे। पहली जो एसोसिएशन बनी वो तो हम सबको चाहिए कि हम सब वहाँ जाया करें। फिरदौस बेगम जैसे मरे, गुलबर्ग में मेन तो उनका घर था और पाक में उनकी वो एक ही मील थी, तो वहाँ कितने लोग गए, तो उनके भी जाए। हमारे अभी असद बुखारी साहब का इंतकाल हुआ, वहाँ भी हमने देखा शेखान साहब, हम 2-3 लोग का जिक्र किया है। कईयों ने तो उम्र भी गुजार दी है, हमारी अपनी भी गुजर रही है और गुजर भी जाएगी। उसको भी एक उम्र चाहिए असर होने तक। मेरी आप सब
आप लोगों से गुजारिश है कि इस रवायत को जिंदा रखें। कम से कम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपकी गवाहियों से बख्शने वाले का भला हो जाता है। और ये रेफरेंस यहाँ पे अभी कहा गया कि उनको हम याद करेंगे, एक रेफरेंस उनका अगली बैठक में भी कराएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग को दावत देंगे, आप सब लोग आएंगे वहाँ पे। आप फसी साहब माशाल्लाह आप खुद राइटर हैं, आपने भी अच्छी बातें की हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई आता है तो वेलकम, नहीं आता दुख तो होता है, लेकिन मैं बड़ा जालिम आदमी है, मैं याद भी रखता हूँ, मैं भूलता नहीं होता। मैं एक जुमला याद रखना हर बंदे का मेरे को अमानत होती हो रही है, ठीक है ना। वजह है ये कि मैं बर्दाश्त नहीं करता झूठ। ये मेरे सीनियर बैठे हैं, एक मिनट में फारिग हो जाए। मेरे सीनियर बैठे हैं खालिद रहीम साहब, इनको देख के मैं आया हूँ उस फील्ड में। और दादा की तहरीरें पढ़ते सुनते थे, हमेशा कोशिश की कि यार चाहे मेरा किसी के साथ लड़ाई है झगड़ा है, जब मैं लिखने बैठता हूँ मैं लड़ाई झगड़ा एक तरफ यही तलकीन करते थे कि आप जो भी लिखें उसकी तहकीक करें, मालूम करें, बेशक वो लेट हो जाए तो उनको हमेशा हम याद रखेंगे, वो जिंदा रहेंगे क्योंकि वो अपनी बहुत सी किताबें छोड़ गए। शरीक हूँ, एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुफ़ैल अख्तर, बहुत कम लोगों को मालूम है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या था। खुदा की कसम वो अटूट रिश्ता है, और लोगों के लिए, शायद चंद लोगों के लिए, वो बदनसीब लोग जो मौत को समझते नहीं हैं, उनके लिए तुम मर गए हो, मेरे लिए तुम हमेशा के लिए ज़िंदा हो। दादा तुफ़ैल अख्तर मरहूम, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता करे। फ़िल्मी सहाफ़ी, फ़िल्म मीडिया में बहुत कुछ कह के गए, उनकी तहरीरें आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा हम में ज़िंदा रहेंगी। तुफ़ैल अख्तर दादा की खिदमात का एतराफ़ होना चाहिए, फ़िल्म इंडस्ट्री को भी करना चाहिए, सहाफ़ियों को भी करना चाहिए, और अदबी बैठकों में भी उनका होना चाहिए, बल्कि उनकी किताबों की एक खूबसूरत नुमाइश लग सकती है, और हमारे आने वाली नस्लों के जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में वो एक मशले राह हैं। मुझे आज उनके ताज़ीती रेफरेंस में आकर बेइंतहा मसरत महसूस हुई, और उनके बारे में बहुत सारी बातों का पता लगा जो हमें पहले नहीं था पता। मैं आज भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे नामवर लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में हमारी आने वाली नस्लों को नहीं पता, जिनमें एक बहुत बड़े शाहकार तुफ़ैल अख्तर दादा भी हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पंजाब से, और ख़ास तौर पर उन सहाफ़ियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसके बारे में सोचें, वरना तारीख़ में ऐसे लोगों के नकूश भी हमें नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारी उनके साथ दरीना दोस्ती भी थी, और ये सिलसिला मरते दम तक जारी रहा। उन्होंने इब्तिदा में धनक में काम किया, उसके बाद मुख्तलिफ़ फ़िल्मी जराइद में काम किया, अपना ज़ाती रिसाला मुस्कुराहट भी शुरू किया, और उसमें वो मुस्कुराहटें बखेरते बखेरते आखिरकार हम सब के चेहरों पर मुस्कुराहटें बांट कर खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बड़े सीनियर थे, हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारे बड़े शफ़ीक रहनुमा थे।